अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मछेरों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सताइश। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीब से किया खिताब। काबीना में तौसी में बरतरफ किए जाने वाले इत्तलात पर बरहमी। सोशल मीडिया में जारी तबसरों को रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने किया मुस्तरद। याखुदपुरा एसआरटी कॉलोनी में हुए सड़क हादसे में नौजवान फौत, टिप्पर लॉरी ने दी टक्कर, ड्राइवर मफरूर। मुतालिका पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। हयात नगर में मिलावटी डीजल फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब, मुतालिका पुलिस ने केस किया दर्ज। मुतासरीन ने पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। सिंगारोनी कॉलोनी में वजनी पत्थर डालकर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया, सईदाबाद पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मछेरों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सताइश की। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में कई एक असली आलात मुतारफ़ हुए हैं जिससे इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। इस तक़रीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने भी खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत मछेरों को 100% सब्सिडी फराहम कर रही है। We must see to it, and it's the duty of the government and organizations like EMPEDA to see that the fishermen, who are the primary producers, they get the maximum for their effort they have put in. We need to place special emphasis on the initiatives which will improve the economic condition of farmers. A number of interventions are needed. We must, for example, reduce the role of middleman, provide crop insurance, enhance access to credit, timely, affordable credit is the need of the hour. Develop cold chains. Unless you have vast cold chain, these are all perishable items. They will not last for more than a day or two. So that being the case, you need to have developed cold chains. Banks must lend liberally for cold storage also, and good up-country market linkages. Provide infrastructure for post-harvest storage, handling and value addition. And this information must be available on net. What is the correct market? We are sending our fish to Bangladesh, sending our fish to different parts. Even in Delhi, we get fresh fish from Andhra Pradesh. I would like to see that the fish producer must be able to know what is the price. People are purchasing fish in Delhi, taking the transport cost and also the investment. The main income should be given to the farmer, the producer. I am aware that all essential technological support is being provided by 8 fisheries research institutes under Indian Council of Agriculture Research, ICAR, several other mandated organizations like the National Fisheries Development Board, NFDB, and numerous NGOs such as the Asian Fisheries Society, Indian branch. However, much more needs to be done to spread awareness and provide service to the farmers. Fisheries and aquaculture are multidisciplinary subjects where scientists and technologists have to work as teams. Gatherings such as this, one should focus on not only as a platform for sharing knowledge and information on new technologies, but also strive to take up this knowledge to the common people. Fish farmers and primary producers, greater R&D support with the strong linkages and between research and development agencies. Increased investment in fish and shrimp hatcheries, diversified aquaculture species, establishment of aquaculture estates, feed mills and ancillary industries have all been identified as important areas for maintaining the pace of growth of the sector. Policy decisions on the utilization of the offshore region for sea farming also is to be taken into account. I am happy that the Prime Minister has segregated animal husbandry and fishery from agriculture. He created a separate ministry so that it will be able to focus more on the challenges faced by these sectors. Agriculture should be streamlined through a set of regulations, codes of practices for various subsectors with suitable penal provisions for violation. Activities and responsibilities of different institutes working for development of aquaculture
याकुतपुरा एसआरटी कॉलोनी में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक छावनी का साकिन सैयद मोइजुद्दीन असलम, जो एमएस कॉलेज मलकपेट का तालिब इल्म बताया गया है, टिप्पर लॉरी की जानिब से दी गई टक्कर में नौजवान मुकाम हादसे पर ही फौत हो गया। इतला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा ने दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मरहूम के लवाहिकीन को पुरसा भी दिया। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा ने बाद इस हादसे के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। सिंगरनी कॉलोनी में पेश आए एक वाक़े में नामालूम अफराद ने एक शख्स पर वजनी पत्थर डालते हुए उसका कत्ल कर दिया। सईदाबाद पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त यादैया के हैसियत से की गई है, जो महबूब नगर का मुतवत्तिन बताया गया है, जबकि 15 साल कबल वो सिंगरनी कॉलोनी मुंतकिल हुआ था। यादैया की बीवी उसे छोड़कर कुछ अरसे से अलहदगी इख्तियार कर चुकी थी और वो तनहा ही जिंदगी गुजार रहा था। इतला मिलते ही पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के कांस्टेबल ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए एक शख्स की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक पेशे से ताजिर मुसाफिर ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान दरवाजे और प्लेटफॉर्म के दरमियान की छोटी सी जगह में फंस गया था और जब लटक रहा था तो उस वक्त वहां मौजूद रेलवे पुलिस के कांस्टेबल विकिल कुमार ने तकरीबन 50 मीटर तक ट्रेन के साथ भागते हुए उस शख्स की जान बचा ली। मुतासर शख्स को मामूली जख्म आए हैं और उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आया है, जबकि रेलवे हकाम ने कांस्टेबल की सताइश की है। हाईटेक इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड सऊदी अरबिया की जानिब से और मुत्तई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के इश्तराक से उर्दू मस्कन खिलवत में तहनीत तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ समाजी जहदकारों, शायरों और दीगर फनकारों को तहनीत पेश की गई। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बादशाह नवाज खान, मुमताज़ NRI और समाजी जहदकार मुमताज़ अली अकरम, साबिक़ डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी प्रोफेसर एस शुक्र ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। बाददा गैर तरही मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर के मारूफ शोरा ने अपना कलाम सुनाया। इस तकरीब में शायर सलाउद्दीन नैयर और इमन इस्माइल साबिक़ जज को भी तहनीत पेश की गई।
जलसे में शिरकत करने का मुझे मौका मिला। और एक हमारे पास दूसरी शख्सियत है जस्टिस ई इस्माइल साहब। अब जस्टिस ई इस्माइल साहब से तो हम सारे लोग वाकिफ हैं, कानूनदा हैं, वो जज रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। और आपके बारे में एक किताब शाये हुई थी, तो उस किताब में सारे तफसीलात मौजूद हैं, उसमें कई वाक़यात हैं, कई आपके जजमेंट्स हैं। तो उसमें चली आती है तेज उत्तुंग आंधियां, इन आंधियों के जद में, इन आंधियों के जद पे मैंने एक चिराग जला रखा है, मैंने एक सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो 31 अगस्त से 15 सितंबर तक रियासत भर के अजला का दौरा करते हुए सरकारी दवाखानों का मुआयना करेंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत एक जानिब सरकारी दवाखानों को खानगी तर्ज पर फरोग देने की बात करती है, लेकिन दूसरी जानिब सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कमी की शिकायत के अलावा दवाओं की किल्लत भी पाई जाती है, इसलिए वो खुद सरकारी दवाखानों का मुआयना करेंगे। भट्टी विक्रमार्का 31 अगस्त को करीमनगर से अपने दौरे का आगाज करेंगे। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की जानिब से काबीना में तोसी के मौके पर उन्हें काबीना से बाहर कर देने की इत्तलात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें मिनिस्ट्री खैरात में हासिल नहीं हुई, बल्कि वो 6वीं मरतबा असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और तेलंगाना के हुसूल के लिए मुसलसल जदोजहद करने के बाद वज़ीर आला ने उनको पहली मरतबा और दूसरी मरतबा भी अहम कलमदान हवाले किया। ई राजेंद्र ने बताया कि मीडिया उनमें और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव में दरार डालना चाहती है, जो मुमकिन नहीं है। तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद को मरकज के जेर तहत करने की सख्त मुखालिफ इसलिए है क्योंकि तेलंगाना के ज़राए आमदनी का 45% हिस्सा हैदराबाद से हासिल होता है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो एक तरफ शहर की तारीखी इमारतों को ख़त्म कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हैदराबाद की कीमती अराज़ियात को फ़रोख्त किया जा रहा है। तर्जुमान कांग्रेस ने बताया कि हम पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हैदराबाद से हासिल होने वाला रुपया वहां खर्च करने के मुखालिफ हैं। पालमूर रंगारेड्डी ప్రాజెక్టు కు అది ఒక సంవత్సరం లోపట్నే పూర్తి చేస్తాం అనే మాట చెప్తూ డబ్బులు లేకుంటే హైదరాబాదులో భూములనన్నా అమ్మి డబ్బులు పంపిస్తారనే మాట చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ ఎవరి జాగీర్ అనేసి మీరు అమ్మి డబ్బులు పంపిస్తామని అంటున్నారన్న మాట మీకు నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. మీ సొంత కుటుంబం ఆస్తి హైదరాబాద్ కాదు, మీరు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో అమ్మటానికి. హైదరాబాద్ నగరం ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు సమయంలో जरचल्ला में 10वीं जमात की तालिबा के हुए कत्ल की मजम्मत करते हुए तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया और कातिल को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि जरचल्ला में 10वीं जमात की तालिबा हर्षिता को सोशल मीडिया के जरिए अपने इश्क में फांसते हुए इस्मत रेजी के बाद नवीन रेड्डी नामी शख्स ने उसका कत्ल कर दिया था। मज़कूरा वाक़े को लेकर रियासत भर के तलबा में बरहमी पाई जाती है और मुलज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। మొన్ననే ఒక సంఘటన జరిగింది. అశ్విత అనే అమ్మాయిని నవీన్ రెడ్డి అనే ఒక దుర్మార్గుడు హత్య చేయబడ్డాడు. అలాంటి వాళ్ళని గురి తీయాలి తప్పక. ఇలా చేయడానికి ఎవరైనా సరే భయపడాలి. ఇలా చేయకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
అండ్ అలాగే ప్రజలని ఇలా చేస్తుంటే నాకేం తెలియదు అనకుండా నిన్న జడ్చర్లలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో ఆ శ్రీహర్షిత అనే అమ్మాయి పైన నవీన్ రెడ్డి అనే దుండగుడు కన్నేసి ఫేస్బుక్ ద్వారా ట్రాప్ చేసి గత 3 నెలలుగా అమ్మాయిని ట్రాప్ చేసి నిన్న రాత్రి వాళ్ళ అమ్మాయిని కారులో ఎక్కించుకొని అడవి ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లి ఆ అమ్మాయిని బలవంతం చేయబోతే ఆ అమ్మాయి నిరాకరించడంతో ఆ అమ్మాయిని అతి దారుణంగా బండరాయితోటి తలపైన బాది హత్య చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ నిందితుడు నవీన్ రెడ్డికి వెంటనే ఉరిశిక్ష విధించాలని చెప్పేసి మేము ఎస్ఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు అమ్మాయిలపైన దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, రేచుకోక చోట జరుగుతూ ఉన్నా ప్రభుత్వాలు వాటికి శాశ్వత చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. నిన్న వరంగల్లో మొన్న 2 సంఘటనలు జరిగినాయి, అయినా కానీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందించడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ ఈ అమ్మాయిలపైన దాడులు జరుగుతుంటే కనీసం స్పందించకపోవడం శోచనీయం. వెంటనే ఈ నిందితుడు నవీన్ రెడ్డిని ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా విచారణ జరిపించి వెంటనే ఉరిశిక్ష విధించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत भी मौसूल हुई है। कोकटपल्ली में 6 सेंटीमीटर, मियाँपुर, खुदबुल्लापुर और जड़चल्ला में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पुराने शहर के चार मीनार और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में तकरीबन 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तर्ज पर जुमे को दोपहर भी शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से आवाम को परेशानियों का सामना रहा। स्कूलों से वापसी के लिए जहाँ तलबा को तकालीफ का सामना करना पड़ा, वहीं दफातर से वापस होने वाले मुलाजमीन भी परेशान देखे गए। हयातनगर में वाक़ एक पेट्रोल पंप पर मिलावटी डीजल फरोख्त करने के सिलसिले में शिकायत पर हयातनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, जबकि पेट्रोल पंप का मैनेजर मफरूर है। डीजल हासिल करने के बाद तकरीबन 20 गाड़ियां पंप के करीब ही मुतासिर हुई, जिसके बाद मालूम हुआ कि भारी मकदार में पानी मिलाया जा रहा था। इस सिलसिले में मुतासिरीन ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया और पंप के खिलाफ कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से सीएमडी ट्रांसको प्रभाकर राव पर की जाने वाली तनकीदों और इल्जामात को लेकर शहर की कई तंजीमों की जानिब से एहतजाज करते हुए इस बात का मुतालबा किया गया कि वो प्रभाकर राव से मुआफ़ी मांगे। धरने में शामिल होने वालों ने बताया कि प्रभाकर राव और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दानिशमंदी की वजह से रियासत भर में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है, जिससे बौखलाहट का शिकार होकर सीएमडी पर बदउनवानी के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अपोजिशन की जानिब से सिलसिला में बरक़ी की खरीदी में बेकायदगियाँ और करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी को लेकर बड़े पैमाने पर जलसे आम का इनेकाद अमल में लाते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय, प्रोफेसर कोदंडाराम, विवेक और दीगर ने खिताब किया और छत्तीसगढ़ से बरक़ी खरीदी की CBI तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत बरक़ी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपयों की बदउनवानी कर रही है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 7 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। मुतालिका पुलिस के मुताबिक सतीश बाबू की नाश दस्तयाब हुई, जिसके बाद नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर मकतूल के दोस्त हेमंत को हिरासत में लिया है, जो बिजनेस पार्टनर भी बताया गया है, और पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान रकमी लेन देन को लेकर तनाज़ात भी चल रहे थे।
సార్ చెప్పండి. తేదీ 29/8/2019 రోజున ప్రశాంతి అని మూసాపేటలో చెందిన ఒక మహిళ వచ్చి తన భర్త సతీష్ బాబు ఇక్కడ 7th ఫేజ్ కేబీహెచ్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నడిపిస్తాడు. 28 నాడు అంటే డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత రాత్రి 10 గంటలకు నేను ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పి ఫోన్ చేసి నిన్న మధ్యాహ్నం వరకు రాలేదని చెప్పి వచ్చి దరఖాస్తు చేయడం జరిగింది. దానిపై మేము మ్యాన్ మిస్సింగ్ అనే కేసు నమోదు చేసిన కేసులో దర్యాప్తులో భాగంగా పరిశీలించగా తెలిసింది ఏంటంటే ఈ 7th ఫేజ్లో హేమంత్ అని వాళ్ళ చిన్నప్పటి క్లాస్మేట్, అదేవిధంగా ఆఫీస్లో పనిచేసే కాకుండా అదే వాళ్ళ బిజినెస్లో పార్ట్నర్ అని తెలిసింది. ఆయన దగ్గర ఉన్నాడేమని చెప్పి వాళ్ళ బంధువులు వెళ్ళి వెతికి చూడగా అక్కడ ఆయన ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది. ఆ తాళం వేసి ఉన్న విషయం మాకు తెలియజేయగా మేము వాళ్ళు కలిసి చూడగా కిటికీ నుండి అక్కడ ఒక వ్యక్తి శవం పడి ఉంది. ఆ శవం ఎవరిదని పరిశీలించి చుట్టుపక్కల మన లోకల్ స్థానికులను పిలిపించుకొని వాళ్ళ సమక్షంలో తాళం చేసి చూడగా అక్కడ ఒక శవం పడి ఉంది. ఆ శవం గుర్తించగా సతీష్ బాబు అని తెలిసింది. ఒంటిపై గాయాలు ఉన్నాయి. దీనిపై మేము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఇది అంటే ఈ శవం కూడా పడింది సతీష్ బాబు హేమంత్ ఇంట్లో కాబట్టి ఆయన మీద మాకు అనుమానం ఉంది. దానిపై మేము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. साइबर क्राइम पुलिस रक्षाकुंडा ने पैन कार्ड्स और आधार कार्ड्स की कॉपीज को धोखे से क्रेडिट कार्ड्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम में 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक 29 साल के बालाकृष्णा, 27 साल वी महेश, 34 साल पी नरेश कुमार और एक साथी शामिल हैं जो दीगर अफराद के पैन कार्ड्स और आधार कार्ड्स की कॉपीज इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट कार्ड्स हासिल कर रहे थे। मस्कुरा टोली के कब्जे से 25 आधार कार्ड कॉपीज, 15 पैन कार्ड कॉपीज के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। एलबीनगर कोर्ट ने खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदातों में मुलविस आर अमर सिंह को 3 साल कैद और 10,000 रुपये फी केस चालान की सज़ा सुनाई। मज़कूरा मुजरिम तकरीबन 14 वारदातों में मुलविस पाया गया है। एलबीनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी। पंजागुट्टा पुलिस ने 2 आदि मुजरिमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 17,000 रुपये मालियती सेलफोन्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 19 साल सैयद फैज़ान मुतवत्ती निज़ामबाद और 21 साल शेख सोहेल को हिरासत में लिया गया जो पहले ही कई ये केसेस में मुलविस हैं और जेल की हवा भी खा चुके हैं। बाद अज़म पुलिस ने उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। एक हमारा पुलिस स्टेशन पंजागुट्टा में एक 2 सेलफोन स्नैचिंग केसेस हो गए। इसमें इंक्वायरी के बारे में पूरे हमारा इन्वेस्टिगेशन क्राइम टीम अफेंडर्स के बारे में इंक्वायरी करा। उसमें शेख फैज़ान बोल के एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल अफेंडर मिल गया। उन्होंने इससे पहले भी इसके ऊपर बहुत केसेस है, क्राइम केसेस बहुत है। इसमें कोर्ट से उन्होंने रिसेंटली रिलीज़ होने के बाद जनवरी से अभी तक और एक 2-3 मेंबर से मिलाकर होने के बाद टीम फॉर्म करके और फिर प्रॉपर्टी केसेस में इन्वॉल्व हो गए। इसके तरफ हमारा हैदराबाद सिटी में हमारा पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में 2 ऑफेंसेस कर रहा हूँ। एक सेलफोन केस है, एक प्रॉपर्टी ऑफेंस है, तो बाइक थेफ्ट है वो। इसलिए उन्होंने हमारा पूरे पुलिस स्टेशन क्राइम वाले पूरे मिलके अच्छा टीम बना के वो इसके बारे में इंक्वायरी करा। वन फाइन डे इनको पकड़ लिया। इम्पॉर्टेंट इसके साथ और 2 आदमी है उसको भी पकड़ लिया। ये पूरे लोग पुलिस ने लाके इंक्वायरी करा, वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो गया। इसमें भी और एक 5 केसेस रिवील करा उन्होंने। ये 5 केसेस में हमारे 2 केसेस है और 3 केसेस मेदक डिस्ट्रिक्ट और गजवेल में है और 2-3 इंसिडेंट भी करा। इसमें इंक्वायरी भी करा। मैं वो लोगों की वो पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दे दिए। हमारे पास ये टुडे ये अफेंडर के बारे में अरेस्ट करके वो लोगों की भिजाते, हम जेल भिजाते कोर्ट से। इसमें पूरा इंक्वायरी करने के बाद मालूम करा इसके वास्ते प्रीवियसली बहुत पोटेंशियल अफेंडर था। इसके ऊपर पीडैक भी हो गया, इम्पोज हो गया। फिर रिलीज होने के बाद भी सेम एटीट्यूड भी कंटिन्यू। इसीलिए हमारा एंटायर मैकेनिज्म ऑफ द क्राइम पुलिस पंजागुट्टा टेक्स stringent action against both offenders which is involved in the potential offender in property offences. They may be arrested today and same has to be sent to the concerned court and concerned jail. में ये इम्पॉर्टेंट है वो सेलफोन स्नैचर है हमारे पास केसेस 2 सेलफोन रिकवरी करा। बाद में बाइक थेफ्ट है, वो बाइक अफेंडर है दोनों। ये बाइक भी इन्वॉल्व है मगर कन्फेशन में और एक इन्फॉर्मेशन का इन्वेस्टिगेशन कोई बाकी है।
इसमें भी इंक्वायरी कर सकते, वो भी निकाल देता, रिकवरी कर सकते। और मेदक पुलिस स्टेशन में वही मेदक एंड गजवेल सम अदर प्लेसेस में इन्वॉल्व है इसके ऊपर और केसेस भी बहुत है, बाद में इंक्वायरी करके वो भी निकालते। तेलंगाना एनआरआई फोरम सऊदी अरबिया की जानिब से हर साल हाजियों की खिदमत के लिए वॉलंटियर्स को मक्के मुकर्रमा भेजा जाता है, जहां हज के दौरान वो न सिर्फ हिंदुस्तानी आज़मीन हज बल्कि दीगर ममालिक के हाजियों की भी रहनुमाई करते हैं। जारिया साल भी सदर फोरम मोहम्मद अब्दुल जब्बार की निगरानी में और इंडियन एम्बेसी, इंडियन कौंसलेट और हज मिशन के इश्तराक से वॉलंटियर्स ने हाजियों की खिदमत अंजाम दी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के कई शहरों से वॉलंटियर्स इस काम के लिए रुजू होते हैं। तेलंगाना एनआरआई फोरम के नायब सदर महमूद मिस्री हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद लईक और चेयरमैन मोहम्मद निज़ामुद्दीन है, जबकि अब्दुल जब्बार की निगरानी में फ़ोरम की जानिब से कई फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हाजियों की खिदमत के सिलसिले में अब्दुल जब्बार ने तफसीलात भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेलंगाना एनआरआई फोरम 2019 का जो हज मिशन, हज वॉलंटियर का मिशन था, वो बहुत ही पीसफुल तरीक़े से कामयाब रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम हज वॉलंटियर्स को फिर से एक बार मैं मुबारकबादी देता हूँ कि उनके जो काफ़ी मेहनत करें, माशाल्लाह बिल्कुल वो लोग तारीफ़ के काबिल है। मुबारकबादी देता हूँ उन लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे तेलंगाना एनआरआई फोरम में इस साल जो है हज वॉलंटियर्स रियाद, जद्दा, दम्माम और मक्का से जो है ये लोग शामिल हुए हैं। और ये है कि उस दौरान में हमारे जो खिदमत रहे, ये खिदमत जो है व्हीलचेयर के और व्हीलचेयर पे लेके जाना जो माजूर हाजियाँ रहते हैं, और उनके साथ जो हमारे वॉलंटियर्स के साथ एक मैप होता है, वो मैप को उस लोकेशंस को ख़ैमों पे पहुंचाना और लोकेशंस को ट्रेस करके उनको वहां पहुंचाना। और उसके अलावा जो भी हाजियाँ रहते हैं वो पानी पिलाना और जूसेस वगैरह जो है सप्लाई होती है उसको पहुंचाना, उनको देना। और क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो माजूर हाजियाँ रहते जो क्या कहते हैं कि जो बीमार हाजी रहते हैं, अगर बीमारी का कुछ हो गया उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाना व्हील चेयर्स पे। इस तरह के ये सारे का जो काम होते हैं हमारे इस दौरान में वॉलंटियर्स का जो मिशन होता है, ये काम में होता है। और फिर से मैं हमारे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय शर्मा ने एलामिया जारी करते हुए रियासत में तकरीबन 32 DSPs को तरक्की दी है और उन्हें एडिशनल SPs के ओहदे पर फायज किया गया। मज़कूरा 32 अफसरान में ACP फलकनुमा डिवीज़न MA रशीद, ACP मलकाजगिरी जी संदीप और मोहम्मद अशफाक 17वें बटालियन ज़िले राजन नासिर सलाह भी शामिल हैं। अलावा 60 इंस्पेक्टर्स को DSPs के तौर पर भी तरक्की दी गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मछेरों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सताइश। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीब से किया खिताब। काबीना में तौसी में बरतरफ किए जाने वाले इत्तलात पर बरहमी। सोशल मीडिया में जारी तबसरों को रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने किया मुस्तरद। याखुदपुरा SRT कॉलोनी में हुए सड़क हादसे में नौजवान फौत, टिप्पर लॉरी ने दी टक्कर, ड्राइवर मफरूर, मुतालिका पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। हयात नगर में मिलावटी डीजल फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब, मुतालिका पुलिस ने केस किया दर्ज। मुतासरीन ने पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। सिंगारोनी कॉलोनी में वजनी पत्थर डालकर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया, सईदाबाद पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।